Page number 350. The Progressive Construction Company undertook a contract for erecting a factory for the total value of rupees 12 lakh. You are required to prepare a contract account for the year ending 31st March 2012 from the following particulars. So you have to prepare contract account from 1/1/2012 to 31st December 2012. बराबर. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दी है, मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि 1 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और 31 दिसंबर को हम लोग हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो बना रहे हैं. So material, wages, overhead, plant and machinery, purchase of special machine, cash received. Cash received was 80% of work certified. Material lying on 31st December 2012 was 20,000. Both the types of plant and machine are to be depreciated at 10% per annum. A special machine costing 5,000 was destroyed by fire on 30/6/2012. And a plant and machinery costing 10,000 was destroyed by accident on the same date, for which insurance company accepted a claim of rupees 5,500. All right. 5% of the value of material issued and 6% of the wages may be taken to have been incurred for the portion of the work completed but not certified. Okay. Overheads are charged as the percentage on direct wages. Ignore the depreciation of plant for the use of uncertified portion of work. Ascertain the amount to be transferred to profit and loss account on the basis of realized profit. Prepare work in progress account and indicate how it would appear in the balance sheet. So let us first of all prepare the contract account for 2012. इसमें नया पॉइंट क्या है? What is the new point in this that I have taken this sum? इसमें है ना, आपको जो वर्क अनसर्टिफाइड है ना, वो आपको सीधी उसकी अमाउंट नहीं दी है. इट इज गिवन एज द परसेंटेजेस ऑफ मटेरियल, percentage of direct wages and percentage of overheads, but you are not given straight away the amount of uncertified work. अभी तक क्या था, हमने जो सम देखे बेटा, उसमें ये लोग हमको सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जो है उसकी अमाउंट दे ही देते थे, but here they haven't given us the amount, so that we are supposed to calculate. This is your debit side and this is your credit side. So let us start. चलो वन बाय वन बोलते जाओ. सबसे पहले मटेरियल्स. सो टू मटेरियल्स, टू वेजेस 3,20,000, टू ओवरहेड चार्जेस 80,000, to plant and machinery that is 40,000, to purchase of special machine. अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, दो तरह की मशीन है. ओके, 60,000. कैश रिसीव्ड वो हम लिखते नहीं है. Okay, cash received was 80% of work certified. So by work in progress, work certified, work uncertified, material, plant and machine and special plant. ठीक है बेटा.
ओके cash received was 80% of work certified. So we'll prepare working note number 1. Suppose work certified is 100. So cash received is 80%. So when cash received is 80, work certified is 100. So when cash received is 6,40,000, what is the amount of work certified? So I think that amounts to very good 8 lakh rupees. So work certified is 8 lakh. Material lying on 31st December was 20,000. So material closing 20,000. Both the types of plant and machinery are depreciated at 10% per annum. A special machine costing 5,000 was destroyed by fire on 36/2012. स्पेशल मशीन के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला है, आज फिर से बोलता हूँ, स्पेशल मशीन में कोई भी लॉस हो सीधा माइनस कर देने का। तो 60,000 की मशीन है बेटा स्पेशल मशीन, उसमें से 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब वो 30/6 को हुई, 30/9 को हुई या 31/12 को हुई, द डेप्रिसिएशन विल बी बॉर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. सो नथिंग इज टू बी डन, स्ट्रेट अवे 60,000 में से तुम लोग 5,000 माइनस कर दो। इसका मतलब तुम्हारा जो स्पेशल मशीन है उसका क्लोजिंग बैलेंस है 55,000, ये दिमाग में डाल के रखना, ठीक है। आगे, एंड ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 was destroyed by accident on the same date, for which insurance company accepted a claim of rupees 5,500. अब ये पॉइंट मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं दोनों मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ढूंढ सकूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्पेशल मशीन की बेटा। तो स्पेशल मशीन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था? 60,000। उसमें से कितना डिस्ट्रॉय हो गया? 5,000। इसका मतलब अभी मेरे पास स्पेशल मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 55,000, और मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना है एट द रेट ऑफ 10%। तो निकालो 10,000 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना होगा, बोलो। 5,500। Yes, sir. Yes or no? 49. Yes, sir. So what is the closing balance? 49,500. So 49,500 is the closing balance of special plant. Now I'll prepare working note number 3 for our plant and machine. So बोलो, हमारे पास जो प्लांट एंड मशीन था उसका बैलेंस है 40,000। अब 40,000 में से ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। यस सर, इधर जो ना जब उसको मशीन को जल गई तभी सर उसकी डेट दी हुई 30/6/2012, तो सर 6 महीने का उनका ना डेप्रिसिएशन नहीं गिनेंगे जो 5,000 की मशीन गई? ओके, चलो डेप्रिसिएशन गिन लेते हैं अपने। तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? सर डिस्ट्रॉय के साथ बोल रहा हूँ, डिस्ट्रॉय के साथ। मैं आपको वही बता रहा हूँ बेटा। 30/6 को चलो डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट सर 300 रुपए बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेट। नहीं, 5,000 की मशीन है, उसका 10% यानी 500, तो 6 महीने का 250, तो कितने की मशीन डिस्ट्रॉय हुई? 4,750। यस सर। तो 4,750 तुम्हारी मशीन डिस्ट्रॉय हुई प्लस 250 रुपए का डेप्रिसिएशन, ये दोनों कौन बेयर करेगा? तो सर ये जो 5,500 दिया, 5,000 दिया, उसी के अंदर सब मतलब डेप्रिसिएशन भी गिना हुआ है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, हु विल बेयर दिस? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में ही तुमको वो मशीन माइनस करके बताना पड़ेगा ना। तो अब तू देख, यहाँ पे ध्यान देना, तेरे स्पेशल प्लांट कितना है ओपनिंग बैलेंस? 60,000। 60,000। तूने क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखा? 49,500। तो तेरा डिफरेंस कितना हुआ?
10,500 तो 10,500 में से तू 4,750 रुपए का वो नुकसान गिन ले। कैलकुलेटर में लिख 4,750 प्लस 250 रुपए का तेरा डेप्रिसिएशन 5,000 प्लस 5,500 तेरा डेप्रिसिएशन ऑफ द बैलेंस मशीन हो गया 10,500। ओके 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 समझ में आया? देखो स्पेशल मशीन में मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, स्पेशल मशीन में तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचने का, जस्ट जो भी डिफरेंस है वो सामने लिख देने का। 60,000 में से 5,000 का नुकसान हो गया, माइनस कर दो। डेप्री वेप्री लॉस वॉस एवरीथिंग इज टू बी बोर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी है उसका जो भी एक्सपेंस है दैट विल बी बोर्न बाय पीएनएल। अब जैसे देखो ये वाला सम देखो आगे, अ प्लांट एंड मशीनरी costing rupees 10,000 okay was destroyed by accident on the same date. So plant and machinery 1/1/2012 को उसका बैलेंस था 10,000 जो डिस्ट्रॉय हुआ, और वो डिस्ट्रॉय हुई 30/6/12 को। तो तब तक का डेप्रिसिएशन गिनो 10% के हिसाब से, तो कितना होगा 500। कैसे? 10,000 का 10%, 1,000 का 6 महीने का डेप्रिसिएशन 500। सो द बुक वैल्यू ऑफ दिस मशीन वुड बी 9,500। और सामने इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया अपने को? 5,500। इसका मतलब मेरा पीएनएल में लॉस कितना जाएगा? 4,000। तो अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो इसकी एंट्री होगी पर्टिकुलरली इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड कितना? 5,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड कितना? 4,000। टू प्लांट एंड मशीन कितना? 9,500। बराबर? सॉरी नॉट टू प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन तो हमने ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। सो टू कहाँ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बराबर, बिकॉज प्लांट एंड मशीन वी हैव ऑलरेडी डेबिटेड। सो टू कॉन्ट्रैक्ट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट साइड पे बाय इंश्योरेंस कंपनी 5,500 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,000। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे आपने मशीन 40,000 रुपए डेबिट की है और 9,500 क्रेडिट की है। ये 40 में से आप 10 को साइड में रखो तो 10,000 यहाँ पे डेबिट हुआ और 9,500 क्रेडिट हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो डेप्रिसिएशन है वही हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चार्ज हुआ। बाकी का सब कौन बेयर करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये जनरल प्लांट एंड मशीन है। लेकिन जो स्पेशल मशीन है वो स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही परचेज किया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट इज स्पेशली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम ढूंढेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो वो बेटा कैसे मिलेगा? लेट अस सी एवरीबॉडी हाउ दैट विल बी कैलकुलेटेड। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका नोट बनाएंगे। हमारे पास टोटल प्लांट कितना था? टोटल प्लांट था हमारे पास 40,000 का, ठीक है। 40,000 के प्लांट में से डिस्ट्रॉय हुआ 10,000 का। इसका मतलब हमारा जो बैलेंस होगा वो 30,000 का प्लांट हुआ। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि 10,000 रुपए का जो प्लांट था वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय एक्सीडेंट। तो 40,000 के जो प्लांट है उसमें से 10,000 डिस्ट्रॉय हुआ तो 30,000 मेरा कॉस्ट प्राइस आया, और इसके ऊपर हम लोग हमारा डेप्रीसिएशन गिनेंगे 10% पूरे साल का। तो पूरे साल का 10% डेप्रीसिएशन अगर आप गिनो तो 3,000 हुआ। सो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? 27,000। वेरी गुड। सो ये 27,000 रुपीज जो है वो मैं लिखूंगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड में। स्टिल वर्क अनसर्टिफाइड मुझे नहीं मिला, बाकी सब मिल गया, आप देख सकते हो
स्टिल वर्क अनसर्टिफाइड आई हैवंट कैलकुलेटेड. सो उसके लिए भी मुझे वर्किंग नोट बनानी है. सो वर्किंग नोट नंबर 4, वर्क अनसर्टिफाइड. अब वर्क अनसर्टिफाइड में ऐसा बोला है कि 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल इश्यू. बराबर. सो मटेरियल का 5%. सो बोलो कितना है हमारा मटेरियल? 1,60,000. तो 1,60,000 का आप 5% निकालो. 8,000. उसके बाद आता है तुम्हारा वेजेस. ओके, वेजेस कितना है? 6%. 3,20,000. तो 3,20,000 का 6% निकालो. 19,200. 19,200 प्लस ओवरहेड्स. तो ओवरहेड का ऐसा बोला है दे आर चार्ज एज अ परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस. तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट वेजेस. सो बोलो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स? यू कैन सी 80,000. 80,000. What is the amount of wages? 3,20,000 multiply by 100. That amounts to कितना परसेंट हुआ गिनो? 25. इसका मतलब जो ओवरहेड्स हैं वो डायरेक्ट वेजेस के 25% है. सो ओवरहेड 25% ऑफ 19,200. बोलो कितना हुआ? 4,800. 4,800. वेरी गुड. 4,800. तो तुम्हारा वर्क अनसर्टिफाइड करो, टोटल कितना हुआ? 32,000. 32,000. So work uncertified is 32,000. बोलो बेटा, any questions to anybody? Now we are going to make the total on both the sides and let us find out the profit or loss. Yes, what is the total on this side of this work in progress का total करो तो बेटा कितना हुआ? 9,28,500. 9,28,500. 9,28,500. Now please make the total of this credit side of contract account. 9,38,000. 9,38,000. 9,38,000. 9,38,000. So please obtain the difference to profit and loss account. 2,78,000. 2,78,000. So my profit is 2,78,000. 78,000. अब इसमें से मुझे ये देखना है कि कितना काम हुआ है. बराबर. सो वर्किंग नोट नंबर 6. सी वर्क सर्टिफाइड है 8 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12 लाख. सो वर्क डन इज 8 लाख अपॉन 12 लाख. 12 लाख में से 8 लाख का काम हो चुका है, तो कितना परसेंट काम हुआ गिनो तो? 66.67%. 66.67%. मतलब ये 25 से 80 के बीच में है. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट? प्रॉफिट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट विल बी 2/3. तो उसकी फॉर्मूला हम सबको पता है. टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन work certified. So बोलो what is the total profit? 2,78,000 multiply by 2/3 into cash received. What is cash received? 6,40,000 upon work certified. Work certified is 8 lakhs. So what is the amount of profit that will be credited to P&L account? 1,48,266. 1,48,266.67. So it is 148,267. So the
amount of profit credited to P&L account will be 1,48,267. So 278 minus 1,48,267. So what is the difference? 1,29,733. So this is the amount of profit that will be credited to your P&L account and to your work in progress account. अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज हमें बनाने को बोली है, वो है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जब बनाओगे तब कुछ नहीं करना है, तुम डेबिट साइड पे, ये वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे डेबिट है, तो डेबिट साइड पे 9,28 और क्रेडिट साइड पे ये जो प्रॉफिट है 129,733. तो जो डिफरेंस है दैट विल बी शोन इन योर बैलेंस शीट. लेट मी प्रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट फॉर यू एज वेल. सो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, it's very simple, nothing is to be done. आपको सिर्फ जैसे लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वैसे ही आपको करना है बेटा. जो डेबिट हुआ है वो डेबिट साइड लिखना है, जो क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट साइड लिखना है, दैट्स इट. और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो नॉर्मली हमारा असेट है. So here I will write the debit and credit particulars, amount, particulars, amount. So work in progress account debited to contract account 9,28,500. Okay, and by contract ये जो प्रॉफिट रिजर्व्ड है वो, बोलो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया आपने ने वर्क इन प्रोग्रेस में? 1,29,733. Now let us close this. $9,28,500, 9,28,500. So please find out the difference. 9,20,500 minus 1,29,733. The difference would be 7,98,767. So this is by closing balance of work in progress, which will be shown on the asset side of balance sheet. बैलेंस शीट की असेट साइड पे ये 7,98,767 rupees will be shown. That's it. Sum is over.